نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہ مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے، بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہے۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا عجز بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے، ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دیا وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا
जो नींद आने पे सोना है, और एक वो वाला सोना है जो कीमती बड़ा होता है। तो दोनों को मशवरा है, सोने वाले को भी मशवरा है, और जिसके पास सोना है ना, ईमान का सोना, उसको भी मशवरा है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली कल, ओ सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली। फरोगे इल्म, मैं बड़ी दर्द दिल के साथ एक बात करूंगा, अवाम भी इल्म को सपोर्ट नहीं करती। हमारा मिजाज इल्मी नहीं, सुनने सुनाने का मिजाज है, सीखने सिखाने का नहीं। मिजाज कुछ इस तरह के बन गए हैं, वो तिनकों का सहारा ढूंढते फिरते हैं, बाबा जी से तावीज मिल जाए, कोई दो एक फूके कोई मार दे। और इतने ज्यादा आस्थानों के बोर्ड लगे हुए हैं कि किसी शहर में गिने नहीं जा सकते कि और कितने कुबीर हैं। लेकिन फरोगे इल्म में किरदार क्या है, किताब व सुन्नत की तरवीज में उन लोगों का कितना को जद्दोजहद का हिस्सा है, काम नहीं करते। इल्म को, आपकी आने वाली सारी नस्लें तभी बचेंगी जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता होंगी। अगर हम सपोर्ट करने लग जाते ना इल्म को, हालात कुछ और होते। अपने बच्चों को मिजाज, और फिर हमारे यहाँ तो बकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो पढ़ लिख के केड़ा नौकरी मिलनी। वो खुदा के बंदे, पढ़ना लिखना नौकर बनने के लिए, पढ़ लिख के तो बंदा शहनशाह बन जाता है। आप पढ़ लिख के नौकरी करनी है, पढ़ लिख के बादशाही करेंगे, नौकरी क्यों करनी है? तो कोई इसलिए पढ़ना लिखना है। मैं चंद ऐसे किसानों को जानता हूं जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से, लेकिन उन्होंने जमीन का सीना चीर के इस तरह का रंग बदला है, उन्हें समझ आ गई है कि असल ये काम किस तरह करना है। आप जब तालीम के साथ जुड़ेंगे, इल्म के साथ वाबस्ता होंगे, जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे, आसान हो रही तो फैज के जरिए भी तो इंसान चले, आप यूं समझ लें जैसे फैज होना उसकी तवज्जो इल्म की तरफ चली जाती है, उसका ज़ौक़ इल्मी बन जाता है। आप क्या समझते हैं, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने से इंसान कितना को फैज याब होता है, जो सारा दिन ही मदीने वाले महबूब की बातें करे, उस पर कितना को वो रंग चढ़ता है, कितनी को वो खुसूसियत चढ़ती है। वो कभी कुरान मजीद की आयात की तफसीर कर रहा, कभी अहादीस मुबारका की शरह कर रहा, कभी वो तत्बीक पैदा कर रहा, कभी वो उससे मसाइल अक्स कर रहा, कभी वो किसी तरह से किसी चीज को समझा रहा। इल्म का ज़ौक़ हो, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, थोड़ी थोड़ी ना तबीयत बनाए, आप सीखना शुरू करें। ये बड़ा खूबसूरत काम है, बंदे को शौक लग नहीं जाता, ये शौक लगाए पढ़ने पढ़ाने का। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने पूछा कि इल्म के ज़राए क्या है, तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाकायदा किसी आलिम के पास बैठने से भी इल्म आता है, अफवाह रिजाल से भी इल्म आता है, सोहबत उलमा से भी इल्म आता है। आप आए जाएं, बैठे, मसाइल पूछें, कुछ वक्त गुजारें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो उलमा की सोहबत में रहते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने लगते हैं, उनको चीजों की समझ आने लग जाती है, चीजों पर गौर करने लग जाते। थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ बनाएं। अगर आप बालिग हो गए तो मसाइल नमाज को सीखें। अच्छा, आप यकीन करें, हर काम का एक जायका होता है, ये मसाइल सीखने का भी एक जायका है। ये आप कभी पैदा तो करें, आपको मजा आएगा, ये बड़ा लुत्फ है। हमने देखा है लोग एक दूसरे को सवाल भेजते हैं, मसला पूछते हैं, कहते हैं जनाब इस पे ये राय भी है, इस पर फलां इमाम का ये कौल भी है। ये भी एक मजेदार काम है, इससे बड़ा लुत्फ आता है। मसाइल नमाज सीखें, आप हुकूकुल इबाद का इल्म सीखें। यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं हवाला भी क्या पेश करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंसाब का इल्म भी सीखो, रिश्तों का इल्म सीखो, तुम्हें सिला रहमी करने में आसानी हो। हमें चीजों को सीखना चाहिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं, फिर अर्ज करता हूं, अगर सारी अवाम को पता चल जाए ना शादी से पहले पहले कि 3 तलाकें इकट्ठी देने से तलाक वाकया हो जाती है, पर सारे बच्चों को रटाया जाए शादी से पहले, बहुत सारे घर टूटने से बचें। लेकिन हम क्या करें, हमने यहां भी रटे रटाए मौजू बयान करने होते हैं, यहां भी महीने के हिसाब से जुमा होता है। लोग उस तरफ तो आते नहीं कि कौम को बाशऊर किया जाए। मसाइल सीखें। आप शादी से पहले अगर मियां बीवी के हुकूक बच्चों को सिखाने में कामयाब हो जाए, जो किताब व सुन्नत में, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि घरों की ढेर सारी लड़ाइयां खत्म हो। शऊर बेदार हो कि मेरे जिम्मे तो ये ड्यूटी है। हम सीखते नहीं। हमने ना, मतलब साहब कहते हैं मेरी दुकान पे, मेरी फैक्ट्री पे आके ना जरा बच्चों से कुरान मजीद पढ़ा दे। मेरा ख्याल है वो इसलिए पढ़वाते होंगे कि पहले जरा तिलावत कराएं,
جو کہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی، اس لیے کراتے ہیں تلاوت۔ کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے اس سے زیادہ برکت ہوگی، یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے، دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں؟ عمر بیت گئی حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے، اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ سیکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں، تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا، یہ تو روحانی کام ہے۔ آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں، 1500 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں، 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے، آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے۔ ہم لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، کام پہ لگائیں، محنت کی عادت ڈالیں۔ شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو۔ مجھے فیض بڑھا ہے جی فلاں بزرگ کا، تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی، یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے، علم کی دعا دی نبی پاک، اللہ اسے علم دین عطا فرما۔ آپ بات کو سمجھے، یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے، پورے خوش ہے جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر کیا، وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا، سارے اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑھا ہے۔ میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے، باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے، یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے، کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی، نبی کریم دعا دے دے تو کمال ہو جاتی، علم لدنی کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا، پھر وہ ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں، میں سماعت کرنے کے لیے آیا۔ اب تو ہمارے ہاں تو رواج ہے، بڑا کم ہو گیا ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں۔ محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں، میں شاگرد، یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سما کروں، یہ درد ہوتا، اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے، بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں۔ اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نہ بتانی، ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا، اسے چاہیے تو یہی نہ کہ کتابیں کھولا کرے۔ ناراض ہو گئے ہو، تھوڑی مہربانی، علماء طلباء نو ناراض کر کے اسی بچنا کہنجے، صرف عرض کر رہا ہوں آپ وہاں سے بھی لے، اگر کوئی امدادی چیز آپ کو ملتی ہے مستند، میں کو منع نہیں کر رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن جو کتابوں کی ورق گردانی سے انسان کو نفع آتا ہے، وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے صبح سے شام تک بیٹھا ہوں میں حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اس کا مزہ تھا، اس کا کوئی سرور تھا؟ تو عوام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی ذوق پیدا کریں، اور پھر اس کام کو آپ سمجھیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے ہی اللہ کا قرب نہیں ملتا، کتاب و سنت کھولنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ مسجد شریف میں محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے حلقے میں بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک شخصیت پڑھا رہی تھی، باقی پڑھ رہے تھے، ایک سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے۔ تو محبوب کریم دونوں حلقہ جات کے بیچ کھڑے ہو کے فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، پر مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، تو حضور اس حلقے میں بیٹھے جگہ دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ آپ سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو وہ بچہ داخل کرانے آیا ایک صاحب میرے پاس مدرسے میں، تو ان کی ابھی عمر اپنی کوئی 35-40 سال کے قریب تھی، تو کہنے لگے یہ بچہ نہ آپ حفظ میں داخل کر لے، ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ عموماً اسی طرح کے جملے لوگ بولتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ خیر کرے، آپ خود بھی پڑھیں، ابھی 35-40 سال تو عمر ہے، آپ کنجوں کی بخشش کا ذریعہ خود بن جائیں۔ آپ نے ابھی سے اسی پہ تقیہ لگا لیے، آپ خود پڑھیں، آئیں رات کو بیٹھیں، اساتذہ کے پاس حاضری دیں، شروع کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جس عمر میں بھی ہیں،
किसी ने देखना हो तो मैं दिखाऊंगा जिस शख्स ने 65 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया है। अल्लाह ने तो इसे आसान कर दिया याद करने वालों के। हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 40 साल में पढ़ना शुरू किया किताबों। आप आए, किताबों सुन्नत से जुड़े, उलूम को देखे, आपको एक अजीब सा नजारा आएगा जब आप बहेंगे ना इस रास्ते में कुरान मजीद की। वो क्या कहा था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि अब तो मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए ना। वो बंदे का ना जिससे प्यार हो जाए दुख सारे उसी को सुनाता है ना। पता होता है ना बच्चे को कि मतलब मैंने सारा कुछ अम्मा से ही कहना है। चलो तुहाडी नहीं गल करता, असल तो जेड़ी गल अब्बा जी नूं मनानी हुंदी सी वो भी अम्मा जी ना करी दी सी। ये भी होता था बचपन में कि वालदा जरा अम्मा नूं राजी करना सौखा है ना, जल्दी हो जाती है, ब्लैकमेल भी जल्दी हो जाती है, जल्दी अब्बा जी से भी जो मनवा। तो बच्चे का पता होता है कि मेरी सारी दिलचस्पियां ही मां से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस तरह कुरान मजीद से दिलचस्पी कायम की, इस तरह वाबस्तगी हुई, और मैं कहूंगा इतनी दिलबस्तगी हुई कि फिर कहने लगे मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं किसी और को दुख नहीं सुनाता, कुरान से पूछता हूं, कुरान ही मुझे बता देता है। तो जुड़ो ना अल्लाह रसूल के कलाम के साथ, आओ ना मेरे भाई, इस रास्ते के मुसाफिर बनो। बातें जो कि ज्यादा नहीं करनी, जितना सीखना है वो बहस के लिए नहीं सीखना, अमल के लिए सीखना। हमारे यहाँ ना मतलब आपने नाराज नहीं होना, जो 4 मसले सीखता है ना एक खतीब साहब से, वो दूसरी मस्जिद के इमाम से जाके बहस शुरू कर देता है, इधर से सवाल पूछता है उधर लड़ाई शुरू कर देता है। आप जो सीखें अमल के लिए सीखें। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे महसूस हो कि मैं कोई बुजुर्गाना गुफ्तगू कर रहा हूँ या उलमा बैठे हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जितनी गुजारी है उसका निचोड़ आपको अर्ज करता हूँ। जब बंदा इल्म पर अमल करता है तो सुकून बड़ा आता है, उसे महसूस नहीं होता कि मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर हूं, उलझा हुआ नहीं रहता। उसकी जो अमली जिंदगी है ना वो उसके दिल को ठंडा करती है। जब इंसान बहुत ज्यादा उलूम से वाकिफ हो, बड़ी बातें करनी आती हो, बड़ा समझदार हो, सब लोगों से कहता हो कि मैं बड़ा बाशऊर हूं, लेकिन अमल के हिसाब से जीरो हो ना, तो सबसे ज्यादा वो खुद तकलीफ में होता है। उसकी गुफ्तगू दीवानों की गुफ्तगू होती है, क्योंकि वो सिर्फ गुफ्तगू का कायल है। आप जो पढ़ें, जो सीखें, फिर उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी अमल वाली गुजारें। मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। मुझसे एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब के पास हम अक्सर ही चले जाते हैं, तो मैंने कहा बाकी वो आलिम कितने, फाजिल कितने हैं, ये तो उलमा ही साहब लगाएंगे। मेरा उनके बारे में सिर्फ इतना तज्जिया है कि मुफ्ती साहब शरीफ आदमी है। अब ये देहाती सा तज्जिया है, तो मतलब ये कि आप इसका कोई भी मतलब ना निकालिएगा, बाकी भी सारे शरीफ ही हैं। अर्ज करने का मकसूद ये है कि बाज लोग अपनी मिजाज में एक नफासत रखते हैं, उनकी तबीयत में एक ठहराव होता है, बाज लोगों के दिलों में नरमी होती है, रिक्कत होती है। जब आप बहुत बाशऊर हो ना, फिर आपको बहुत ज्यादा वजादार भी होना पड़ता है, आपको अपना आलिमाना वकार भी कायम रखना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे अर्ज कर रहा था कि अगर कोई ऊंची कुर्सी पे बैठता है ना, तो फिर उसे थोड़ा सा जिन्हा ने भर के सिर ते चाया, फिर कदम रखन डार डार के, फिर उन्हें मोहतात भी ज्यादा होना चाहिए। आपका दावा पेशवाई और मुक्तदाई का है, तो फिर भैया आपका तकवा भी तो शानदार होना चाहिए। आप उस लेवल के हो, मेयार हो। आपने अगर कुछ पढ़ा हुआ है, आप बाशऊर हैं, फिर उस पर अमल करें। आप गुफ्तगू ना सुनाएं कि जनाब वो मैं तो फलां डिग्री रखता हूं, तो मैं तो जनाब BBA किया हुआ हूं, तो मैं तो MSc। ठीक है आप होंगे, लेकिन आपका उठना बैठना बताएगा आप कितने तालीम याफ्ता। मैं एक दफा फ्लाइट में सफर कर रहा था, उम्रे की फ्लाइट थी, तो एक बुजुर्ग दाखिल हुए। तो अब जाहिर है सारे लोग तो नहीं ना जानते, अक्सर सफर नहीं करते। उमरा शरीफ का सफर बहुत सारे लोग देहाती भी करते हैं और कई दफा पहला भी होता है। तो जिस तरह उनको अंदर आए, जो सीट खाली देखी उसमें बैठ गए। तो अमला जहाज का उनको उठाने लगा कि आप यहां से उठिए और सीट नंबर जो है आपका, उसके मुताबिक आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ ले जाइए। तो पीछे एक जवान बैठा था, तो वो कहने लगा है साढ़े पिंड दे बंदे नहीं सियाने हो सकते, किधरों तालीम पढ़ी हो गए थे, उन्होंने पता हो गया ना। तो मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने उनसे कहा बुजुर्ग आपके गांव के? कहने लगे हाँ। तो मैंने क्या तालीम है आपकी? तो उन्होंने को मास्टर की डिग्री बताई। तो मैंने कहा इस वक्त आपके हाथ में डिग्री होती तो पकड़ के फाड़ देता मैं। अगर आपको पता चल गया था ये आपके गांव के हैं, बेचारे सादा है, तो फिर तो आपको उठ के इनको पकड़ के लाना चाहिए था।
फिर तो आपको इनको नशिस्त पे बिठाना चाहिए था, सीट बेल्ट अपने हाथों से बांधना चाहिए था, पानी की बोतल पेश करनी चाहिए और ये कहना चाहिए था बुजुर्गों में फलां जगह बैठा हूं, जरूरत पड़ी तो आवाज दे लीजिए। ये सिखाया आपको? ये तो आसान काम है किसी को जाहिल कह के जान छुड़ाना, तो आसान है। लेकिन मेरे नबी करीम का कमाल ये है कि हुजूर ने जाहिल कह के लोगों को छोड़ा नहीं, बल्कि पकड़ के आलिम बना दिया है, मुक्तदा और पेशवा बना दिया है। खुद न थे जो राह पर, औरों के रहबर बन गए। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? तो शऊर बांटे, शऊर। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके माँ बाप अनपढ़ हैं तो फिर आपके हौसले का पता चलेगा, फिर आपके हौसले का पता चलेगा। इमाम आजम से बड़ी मिसाल मैं कहां से लाऊं? एक खतीब थे, एक वाइज थे बगदाद के, कूफा के। तो इमाम साहब की अम्मा इमाम साहब से कहा करती उनसे जाके मसला पूछ के आए। तो इमाम साहब कहते हो तो मेरा शागिर्द है। तो कहती नहीं, आप उसी से पूछें। कई लोग मारूफ हो जाते हैं ना, उन्हीं से पूछें। तो इमाम साहब अपनी ये है इल्म। ये कुरान ने कहा उफ नहीं करना तो नहीं की, जिद नहीं की। गए जाके उस शख्स से कहा जनाब मसला बताइए। तो कहने लगे उस्ताद जी मैंने मसले बताने, मसला तो आपने बताना है। तो फरमाने लगे मेरी अम्मा चूंकि आप पे मुतमईन होती है तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताएं। तो फिर आपका नाम लेके मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा। ये है इल्म का कमाल कि आप अपनों के लिए फिर नरम दिल हो जाए। फिर आपका कि मसला शरी क्या है, तर्ज जिंदगी उनके किरदार व अमल से। पीराने मशरिक के खामोश, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा उसने फिर हमारी गुफ्तगू से क्या सीख रहे हैं। मुसलमान दोस्तों, अब इशारों की बातें समझो। जो फलस्तीन के साथ हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। जो कश्मीरियों के साथ सालों से हो रहा है किसी से ढका छुपा। नस्लें बदल गईं पर जुल्म नहीं बदला। लोग कब्रों में दुख लेके चले गए लेकिन उनके लिए कोई मसीहा उठ के नहीं आया। जो बर्मा के मजबूरों के साथ हुआ किसी से ढका छुपा। ये कितनी कुबार लीबिया कटा है कि दुरुस्त शाम सारा यतीमों से भरा हुआ है। मैं कैसे आपसे बात करूं, किन लफ्जों से आपको समझाऊं, किस कदर ज्यादा मजीद हमें नसीहतों की जरूरत है। अब हमारे बुजुर्ग तकरीरें बड़ी कम कर देते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चंद एक बयानात, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कभी गुफ्तगू करते तो किताब से देखकर उनके अमल से लोगों को पता चल जाता था कि मसला शरी क्या है। उनके किरदार व अमल से। पीराने मशरिक के खामोश, वही हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा उसने फिर हमारी गुफ्तगू से क्या सीखा। मुसलमान दोस्तों, अब इशारों की बातें समझो। जो फलस्तीन के साथ हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। जो कश्मीरियों के साथ सालों से हो रहा है किसी से ढका छुपा। नस्लें बदल गईं पर जुल्म नहीं बदला। लोग कब्रों में दुख लेके चले गए लेकिन उनके लिए कोई मसीहा उठ के नहीं आया। जो बर्मा के मजबूरों के साथ हुआ किसी से ढका छुपा। कितनी कुबार लीबिया कटा है, शाम सारा यतीमों से भरा हुआ है। मैं कैसे आपसे बात करूं, किन लफ्जों से आपको समझाऊं कि मुसलमान जब तक मुसलमान बन के जीना नहीं सीखता। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे दीन का काम मजदूरों की तरह करना, मजदूरों की तरह मुशक्कत करना। ये मुशक्कत से काम होगा। हम कोई अमली जद्दोजहद ही नहीं कर रहे। मुझे बताइए अपने दीन की तरवीज के लिए, मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए हमने क्या खिदमत सरन। इतना प्यारा है हमें आराम, प्रोटोकॉल, अपनी जिंदगी, अपने आप से प्यार, अपने लिए हर वक्त जीना, अपने हक में बातें करना। इनकलाब क्या आया? हमने ऐसे बुजुर्गों के हालात पढ़े कि कोई शख्स कहता था ना कि मैं तो सुबह सुबह मंडी जाता हूँ शहरी के वक्त, तो उस वक्त अगर मैं आपसे पढ़ लिया करूँ तो कहते तू उसमें ले आ जाया कर। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी तहज्जुद पढ़ लूंगा, तुझे भी सबक दे दूंगा। भाई आप सब और मैं मिल के कोशिश करें, शऊर को बेदार करें, किताब व सुन्नत से जुड़े, अपने आप को इदारों से वाबस्ता करें, मदारस में चल के जाया कर, हफ्ते का एक का दिन किसी इदारे में गुजारा करें। आप यहाँ कोई फरिश्ते नहीं बसते, कमजोरियां सुस्तियां हर जगह ही होती हैं सब इदारों में। आपके आने से तवानाई बढ़ेगी। आप आएंगे, अच्छे मशवरों का तबादला होगा। आप आए लेकिन इल्म को सपोर्ट करें, शऊर को सपोर्ट करें, किताब व सुन्नत के फरोग में अपना अपना किरदार अदा करें। नौजवानों से कहूंगा
बेहुदा चीजें और बेहुदा मामलात को शेयर करने की बजाय आप कोशिश करें कि सही मुस्तनद अहादीस मुबारका, किताब व सुन्नत की खूबसूरत चीजें आप आगे लेकर के जाएं, कुछ थोड़ा सा माहौल बनाएं और अपने अमल और किरदार में उसने इखलाक को और हमदर्दी को और खैर खाई को लेके आए। अब हमने बड़ा कुछ सुन लिया है, बड़ा कुछ सीख लिया है, अब 2-4 कदम उठाएं और अमल का रास्ता इख्तियार करें। मेरे दिल से बड़ी दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के हर इदारे को आबाद रखे और मुफ्ती साहब के इदारे को अल्लाह ताला बरकत अता करे। जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, बात करते हुए कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आखिर दावा।